start. Thank you, सीमा, आपके टाइम के लिए, आने के लिए, और मेरे छोटे से रिक्वेस्ट पे आपने हाँ कर दी। अपने जो है बहुत मसरूफ टाइम से आपने टाइम निकाला, तो इस चीज़ के लिए बहुत शुक्रिया। और हम pleasure. कोशिश करेंगे कि इस सेशन को जो है जितना हो सके आपके अराउंड, आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड आपसे गुफ्तगू करेंगे। तो yeah, thank you for being here. Just a quick introduction. I'll give my introduction, and then you can, do a more personalized introduction of yourself. So, Seema graduated from Fatima Women University, Fatima Jinnah Women University Fatma in Jinnah Women Rawalpindi, and then she University, went, yes. or during while she was studying there, she went for the U grade, I believe, and then afterwards she worked in the city school system as English teacher, and later went to the STEP program. I don't know if STEP is secondary teachers educator program, most probably. Yeah, It in is, it is, yes. IIS London, and where she also got another degree from UCL, University College London. Yes. Okay, and then currently she is now in China. So thank you, Seema, for joining in, and please, the floor is yours now. Thank you so much, Mahmood, for bringing me to this platform. I'm very, very happy to be here, and I hope कि जो भी आज यहाँ बातें होती हैं हमारे ऑडियंस को, पार्टिसिपेंट्स को, वो हेल्पफुल रहे, hopefully. So let's begin. I don't think I need to repeat anything that you said about my introduction, right? Sorry. Yeah, maybe let's just quickly start from how did you ended up in the U grade program? What was the intention behind it? Was it, thought through, or was it by accident, or? I would say it was by accident. So I did not do a 4 years bachelor's. I did not do a 4 year bachelor's degree. I had done a BA, and then I had enrolled in a master's program. So like outside of Pakistan, that's considered a bachelor's degree, right? Our 2 years bachelor's and two years master's program. So I was in Fatma Jinnah, and I was studying something that I was very, very passionate about. So I was doing a master's in English literature. I was a very bookish person. I was a bookworm. I was an introvert, and I would just So this is the story. I did not have many friends in university, and I would usually just go to the library and read my books. So one day, one of my friends, she was in the BS program, and she came and she said she wanted her personal statement to be proofread. And I usually used to write everybody's application and things like that at the hostel. So she came to me and she said that she wants this thing to be proofread, and I read it, and like through that I got information about the program. And she said, "Why don't you apply?" I said, "I'm not eligible. This is for bachelor's, and I'm doing a master's program." And she said, "It actually is equivalent to a bachelor's degree, so you are eligible." So I said, "Okay, now that I know about the program, I should just submit my application as well." So this was back in 2011, at like the end of 2011. So during that time, like online system इतना ज़्यादा नहीं था, चीजें जो हैं वो ज़्यादा manual थी. I had to print out this application and fill it out in hand, and then courier it to this office. So then I did it, and I got in. So it was by accident, but that experience, that program actually changed my life. So it gave me a voice. As I said, I was a bookish person, somebody who just dive into books and not I did not want to be seen by the world, or I was that kind of person. But going on the U-Grad program, that exposure gave me a lot of insight. It gave me a lot of confidence in myself, and that actually opened a lot of roads for me. And yeah. Yeah, So it was perfect. very helpful to me. Yeah, An yeah. accident that was very, very helpful.
Okay, yeah, I mean, you can make your kids sit with you if you want to. I mean, we don't mind that. I'm sorry. No, I no, am it's so okay. sorry. So, No, he's okay now. He's settled. yeah, for example, for me, a transformative phase was, when I really went into doing the CSS program, the civil services in Pakistan. So that gave me another perspective into, oh, there are other field of studies as well, because I took Hmm. international relation and I believe international law and subjects like this. Hmm. So only then I Hmm. got to know that, because I was into arts, and we in arts Hmm. used to think that, oh, it's just arts and हमने तो बस यही तस्वीरें खींचनी है, यही drawings करने हैं, यही चीजें करनी है, and that's it. We That's never it. used to know Hmm. that, oh, there's for an artist it's very important to do humanities and just to understand society before venturing on to depict society. So for me, that was a Hmm. transformative experience to do the CSS, which gave me an alternative. So you sitting Hmm. in the libraries, spending so much time. इसमें फिर ये कि transformation जो phase होता है, तो I mean, my audience would like to know, that कि what exactly is the kick that really takes you to where you are today. So for me, it was that transformation. So you sitting in the library, was that some sort of experience for you to, get more knowledge about other subjects or something, or was it just being focused to what you're doing? I think it goes both ways. So when you read books, and of course, books open different worlds to you. So um, for somebody who like I come from Gojal, right? And my initial education, I had also done my schooling from Gojal. और तब भी मेरे कुछ कजन थे जो गिलगित में रहते थे, तो एक एक वो भी हमें एज होता है ना हमारी तरफ के लोगों को, कि जो हमारी फैमिलीज में से लोग जो शहरों में रहते हैं, जिनके बच्चे एक बड़े स्कूलों में पढ़े हैं, उनसे भी हम लोग बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। जैसे मेरी कजन थी, शी यूज टू रीड बुक्स लाइक बचपन से, ठीक है। तो वो जब छुट्टियों पे आती थी तो एक वो चीज भी थी कि अच्छा वो पढ़ती है, शी नो सो मेनी स्टोरीज। तो उनके सीखा लाइक उनके देखा देखी मैंने भी बुक्स पढ़नी शुरू कर दी। एंड इट वाज वेरी अनयूजुअल फॉर समबडी लाइक 6th क्लास की बच्ची है जो नॉवेल्स पढ़ना चाहती है गांव के स्कूल में, और ये लाइक 97 98 लाइक, हाँ तब की बात ना, 2001 टू उस वाले एज में। तो मैं वो एक चीज करना चाहती थी, क्योंकि मैंने किसी को देखा था जो ये कर रही है, लाइक शी इज गॉट अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड उसको बहुत सारी स्टोरीज, डिफरेंट स्टोरीज जिसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स है जिनके नाम लाइक इंग्लिश में है और डिफरेंट है, अजीब है। तो एक किसी को कॉपी करने से भी ना आप आपकी लाइफ का जो एक एक रोड है वो आप सेट कर सकते हो अपने लिए। So for me, I think that was following my cousin in reading books, ठीक है। और वो बुक्स से जब आप पढ़ते हो तो आपको बहुत सारी दुनियाओं के बारे में पता चलता है, बहुत सारे कल्चर्स के बारे में आपको पढ़ने का मौका मिलता है, और एक कंपेयर करने का भी मौका मिलता है कि अच्छा हमारी तरफ इस तरह से है, उनकी तरफ उस तरह से है। तो वो चीज ठीक है। तो ये किताबें पढ़ने से भी मुझे बहुत ज्यादा उस तरह से इंफॉर्मेशन मिला था, और एक वो एक दुनिया जो है ऑफ कोर्स अपने नेकेड आई से नहीं बट अपने इमेजिनेशन में एक दुनिया देख ली थी। तो एक मैं एग्जांपल आपको दूं कि व्हेन आई वाज लाइक गांव से निकल के फिर मैंने गिलगित में पढ़ाई की थी, और गिलगित शहर का जो एनवायरनमेंट है वो आपको अंदाजा है कि बहुत ज्यादा रिजिड हुआ करता था ये यूनिवर्सिटी बनने से पहले, बहुत ही ज्यादा रिजिड। सो व्हेन आई स्पेंट माय 4 years ऑफ एजुकेशन, जब तालीम हासिल करी थी गिलगित में, तो वो इन का मिलता है, चीजें हैं जो वेस्ट में बहुत ज्यादा प्रेवेलेंट है, उन चीजों के बारे में तब इंफॉर्मेशन मिल गई थी। तो जब मैं यूग्रेड पे फिर गई तो वो चीजें जब वाकई में एक्सपीरियंस करने का मौका मिला, या उन्हीं लोगों से जो वो चीजें करते हैं अपनी जिंदगी, जिनकी जिंदगियों का वो हिस्सा है, उनसे वो उनके बारे में बात करने का मौका मिला, सुनने का मौका मिला। तो वो एक कंपैरिजन, मतलब वो एक कल्चरल शॉक जो आपको लगता है वो नहीं लगा फिर मुझे। एक होता है ना कि मतलब यू ग्रेड में यूएससीएफपी के जितने प्रोग्राम्स हैं यू ग्रेड की तरह, उसमें आपको लाइक हर स्टेप पे वो आपको गाइड करते हैं ना कि कल्चरल शॉक लगता है उसमें आपको क्या करना है वगैरह वगैरह, राइट। तो वो जो चीजें हुई थी एक तरह से माइंड तैयार था ना कि
इस तरह से मुझे शौक लगने वाला है और उसको मैंने इस तरह से टैकल करना है, राइट। लेकिन ये चीजें क्योंकि किताबों में पढ़ ली थी तो उस तरह से शौक लगा ही नहीं। हम्म। ठीक है। तो वो चीज भी, फोकस्ड रहना इज वन थिंग, बट मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग नहीं भी कर पाते। लेकिन कभी कभी ये भी कहते हैं ना कि नीम हकीम खतरा है। वबाए जान, समथिंग लाइक दैट, बताइए। खतरे है जान। ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन हो, अच्छी बात है। लाइक वो आपको काम आता है ऑफ कोर्स जिंदगी में, राइट। तो वो लिव्ड एक्सपीरियंसेस, वो स्टोरी सुनना, उनसे सीखना, वो जरूरी है आपके लिए। सो बुक्स पढ़ना भी और अपने काम के ऊपर फोकस्ड रहना भी जो है आपको काम देता है। बट फोकस्ड रहना भी ना बहुत ही ज्यादा थोड़ा क्लीशेड एक टर्म है ना हमारी तरफ, के फोकस्ड कैसे रहा जाए, लाइक किस चीज के ऊपर फोकस किया जाए। अम, तो मुझे लगता है कि वो चीज हर किसी के लिए वो वेरी करता है, क्योंकि सबकी लिव्ड एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है ना। तो फोकस्ड क्या, कि मतलब मुझे ये बनना है और उसी रास्ते पे मैं रहूं, या लाइक वो फिर हर किसी का मेरे ख्याल में फोकस्ड रहने का जो तरीका वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, दो दो एस्पेक्ट्स में आपके इस बात से उठा लेता हूँ। एक ये कि तकलीद करना जरूरी है, किसी का नकल करना जरूरी है। अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं, नहीं करना चाहिए, ये नहीं पढ़ना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए उस तरह से, और हम अपनी तरफ से बड़े क्रिएटिव बनेंगे। इस बात को इग्नोर करते हुए कि अगर आप किसी चीज के अंदर वाकई में घुसना चाहते हैं, तो उसमें फिर जो जो उस फील्ड के अराउंड, या जो जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, या उसकी आ, अपना इस्टेब्लिश करने में उस फील्ड को, या उस लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है, तो मेरे ख्याल से वहां पे तकलीफ बहुत जरूरी है, क्योंकि वो फिर आपको ये रास्ता बिल्कुल। दिखाता है कि वो सारा कुछ आप इंटरनलाइज करके ही आप कुछ अपनी तरफ से कर सकते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इंटरनलाइज। क्योंकि कभी कभी आप वो डाइव इन करने वाला जो करेज है ना, वो सब में नहीं होता है कि मैं कुछ नया करूं। बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए वो काम कर जाता है, बट बहुत सारे लोगों को कोई फॉर्मेट चाहिए होता है। लाइक कोई कोई लाइक किसी ना किसी तरह से ना, कोई एक एग्जाम्पल, एक ट्रेलर जो है ना, उनको देखना जरूरी होता है। um, एग्जैक्टली, तो एंड ऐसे लोगों के लिए फिर ये तकलीफ जरूरी है, बिल्कुल उनको ठीक काम है, आता है। द सेकंड एस्पेक्ट आल्सो अबाउट फोकसिंग, कि आप फोकस कैसे करेंगे जिंदगी में। मेरे ख्याल बिल्कुल से ये जो सारा नोशन है ना फोकस के अराउंड, ये ह्यूमन सोसाइटी जैसे ही 19th सेंचुरी ऑनवर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद से जितना हम आगे जाए जा रहे हैं, इतना ज़्यादा जो है हमारा लाइफ फास्ट पेस हो रहा है, इतना ज़्यादा हम फोकस लूज कर रहे हैं ओवरऑल सोसाइटी के ऊपर। तो इसमें खासकर सोशल मीडिया के अंदर जो ये जो अटेंशन स्पेन का सारा अब पूरा एक कॉग्निटिव साइंस आ रहा है आगे, कि कैसे आपके हम्म अटेंशन जो है सेकंड्स में इतना ज्यादा शफल हो रहा होता है कि आप कहीं फोकस ही नहीं कर पाते। तो हम्म बड़ा एक दिलचस्प वो है मेरे लिए। बजात खुद मैं सोशल मीडिया से कोई 1.5 2 साल दूर रहा, सिर्फ इसी वजह से कि मैं एक चीज पे फोकस कर पाऊँ। तो ओवरऑल लाइफ में मेरे ख्याल से फोकस करना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस मांगता है। हर चीज से सेक्रीफाइस बिल्कुल मांगता है, कि आप कभी कभार फैमिली को भी सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने एक फील्ड के साथ फोकस्ड रहना। तो दीज आर टू बिग टेकअवेज, सो फॉर मी पर्सनली, फ्रॉम व्हाट यू सेड. So secondly, maybe I'll just quickly go to the process for UGRADE. Do you still know how it works, or is your information आई डू। outdated? Please, if you can नो reflect. आई डू। बिल्कुल। तो यूएसईएफपी का पार्ट होने का फिर फायदा ये है कि जितने अलमनाई हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स में, वो हमेशा लूप में रहते हैं। तो जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, कभी लाइक दे आर इनवाइटेड टू कॉन्फ्रेंसेस, और लाइक दे आर इनवाइटेड टू स्पीक टू अदर यू ग्रेडर्स जो जा रहे हैं या वापस आ रहे हैं, उस तरह से। तो एक प्रोग्राम का हिस्सा होने का जो है ना, वो फिर मौका मिलता है। तो ऑफ कोर्स आई नो हाउ इट वर्क्स। तो अभी तो आजकल जो है वो सारा ऑनलाइन है। उनका एक एप्लीकेशन का वो पोर्टल है, और उसी पे पर्सनल स्टेटमेंट भी वहीं पर लिखा जाता है। लेकिन अभी तो वो क्वेश्चंस पूछते हैं, और उनको आप जो है आंसर करके आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो। तो मेरे ख्याल में विद अ लॉट ऑफ अदर स्कॉलरशिप्स जिस तरह से चल रहा है ना, कि पोर्टल्स हैं और वहीं पे आप जो है सारे क्वेश्चंस आंसर कर रहे हो, पर्सनल स्टेटमेंट वहीं पर लिख रहे हो, और
डॉक्यूमेंट्स भी उधर ही अपलोड करके एप्लीकेशन सेंड कर रहे हो। और जो क्राइटेरिया है वो अभी भी सेम है कि आप जो है, आवाज नहीं आ रही? नहीं, मुझे आ रही है वो। आई गेस आई आई ओके, अंडरस्टैंड देयर इज अ लिटिल प्रॉब्लम विद। नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हाँ। ओके, तो क्राइटेरिया अभी भी यही है कि somebody who is interested in applying for global UGRAD, उसको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का हिस्सा होना ज़रूरी है। पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में जो है वो पढ़ रहा हो, और जो है पब्लिक यूनिवर्सिटी उन पर लिखा भी होता है कि वुमेन लाइक फीमेल्स, और फीमेल्स जो फाना फाटा और गिलगित बाल्टिस्तान से हैं, उनको बल्कि दी रहेगी। um, तो इसके लिए अंडरग्रेड प्रोग्राम का हिस्सा होना, और 6 सेमेस्टर या उससे पीछे हो, मतलब 7 सेमेस्टर वालों को मेरे ख्याल में वो नहीं कंसिडर करते, उनकी एप्लीकेशन को नहीं एक्सेप्ट करते। ये कुछ क्राइटेरिया है जो जो सेम है। और पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो टू दी पॉइंट हो, और उसमें भी एक पर्सनल स्टेटमेंट लिखने लिखने का जो स्किल है ना, क्योंकि अब इतने सारे स्कॉलरशिप्स हैं, और बच्चों को अगर मतलब यूग्रेड से ही वो शुरू कर देना किस तरह से लिखा जाता है, तो बाद में मास्टर्स के लिए या दूसरे प्रोग्राम्स के लिए जो है ना, उनको एक उनको प्रैक्टिस हो जाती है कि अच्छा इस तरह से पर्सनल स्टेटमेंट लिखा जाता है। और पर्सनल स्टेटमेंट लाइक वो उस तरह से कोई उस तरह साइंस भी नहीं है ना कि मतलब आपको सीखना पड़ेगा, या मतलब बहुत सारे ज्यादा वर्कशॉप्स वगैरह भी होते हैं कि दिस इज हाउ यू राइट अ पर्सनल स्टेटमेंट। ओके फाइन, आप लाइक एक स्टार्टिंग लेने के लिए सही है कि एक बंदे को पता हो कि उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, लेकिन like if somebody is interested in applying to the program, उनको पता है ना कि उन्होंने क्यों प्रोग्राम में अप्लाई करना है, वो थोड़ा सा वो सोच के साथ अगर वो लिखना शुरू करेंगे ना, तो उनको इजी रहेगा, उनको कहीं से भी वर्कशॉप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर उनको नहीं पता है कि मैं इस प्रोग्राम में क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, और वो पर्सनल स्टेटमेंट से शुरू करेंगे ना कि मैं इसमें उसको बराबर कर दूं, तो वो नहीं होगा उस तरह से। तो एक प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है, उसमें क्यों जाना चाह रहे हो, उसमें से आप क्या हासिल करना चाह रहे हो, उसको दोगे क्या, वो चीजें अगर आप अपने माइंड में सेट करके लिखोगे ना, तो वो फिर इजी रहता है। परफेक्ट। तो ये जो आपके सेमेस्टर होता है या साल होता है जो आप बाहर गुजार रहे होते हैं, इसमें ये आप सेमेस्टर। ग्रेड की तरफ काउंट होते हैं आपके होम यूनिवर्सिटी में या? तो ये जो ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट जो है वो पॉलिसीज हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कर लेते हैं, जो क्रेडिट आवर्स है वो काउंट कर लेते हैं। फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी से बहुत सारी बच्चियां जाती थी मेरे जमाने में भी, और अभी भी जाती हैं ग्लोबल यू ग्रेड पे। तो वो जो है क्रेडिट्स उनके काउंट होते हैं उनके डिग्री के अंदर। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज करते हैं, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज फिर बच्चों को सेमेस्टर रिपीट भी करवाते हैं। ओके। तो दैट वेरीज। या फॉर श्योर। ये टोटल ड्यूरेशन इसकी क्या है? 1 साल? 6 मंथ्स 6 मंथ्स? सेमेस्टर। हाँ, सेमेस्टर के लिए जाते हैं। तो अब ये भी डिपेंड करता है कि यूएस के अंदर बच्चे किस तरह के, कौन सी यूनिवर्सिटीज में, कौन से स्टेट में प्लेस हुए हैं। तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में यूएस के अंदर कहीं कहीं पर जो सेमेस्टर है वो 4 महीने का है, कहीं 4.5 महीने का है, कहीं 5.5 महीने का है। तो 6 मंथ्स के लिए जो है वो वीजा मिलता है बच्चों को, और कुछ लोग 4 महीने बाद वापस आते हैं, कुछ 4.5, कुछ 5.5, उस तरह से। तो वो ड्यूरेशन भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरी करता है। ठीक है। और यूनिवर्सिटी आपके पास कुछ चॉइसेस होती हैं या लोकेशन किस तरह से होती नहीं, नहीं, जो पर्सनल स्टेटमेंट में आपने जिस तरह से अपने इंटरेस्ट्स आपने स्टेट किए होते हैं ना, उसके मुताबिक वो आपको यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स जो उसके साथ अलाइन करते हैं, उसमें आपको प्लेस करते हैं। है? परफेक्ट। जैसे अ, मैंने जिस तरह से आपको कहा कि मेरा एक्सीडेंटल था, तो जो लिस्ट ऑफ फील्ड्स ऑफ एजुकेशन था ना, उसमें इंग्लिश नहीं था। मैं इंग्लिश पढ़ रही थी और उसमें वो इंग्लिश नहीं था, लेकिन उसमें साइकोलॉजी था। तो मेरे बीए में मेरे लिटरेचर के साथ साइकोलॉजी जो है मैंने इलेक्टिव रखा था।
तो मैंने साइकोलॉजी ऐसी डाल दिया था क्योंकि लाइक इट वाज देयर। तो फिर मुझे साइकोलॉजी पढ़ना पड़ा था यूग्रेड पे, व्हिच वाज वेरी नाइस, लाइक इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस वो पढ़ना भी। लेकिन वो मेरा एक्सीडेंटल था, लेकिन एक एक तरह से एक बैकग्राउंड मेरा था ना, तो मेरे लिए इजी रहा। बिल्कुल ही उसमें जंप कर देना भी इट वुडंट बी वाइज। तो वो चीज है। तो मुझे मेरी प्लेसमेंट जो है ना फिर वो साइकोलॉजी के मुताबिक की गई थी। बट मेरा लक इस तरह से कि मैं फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी जो है ना पाकिस्तान के अंदर, वो ऑल वुमेन यूनिवर्सिटी है। तो मैं ऑल वुमेन यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान में भी पढ़ रही थी, और यूएस में मुझे एक ऑल वुमेन यूनिवर्सिटी में प्लेस किया गया था। तो मेरी रूह औरतों के साथ ही रही। Oh, that's strange to also hear that कि यूएस में भी इस तरह से है कि all men all. आई नो। ये Okay. मेरे लिए भी ये न्यूज़ था, मतलब जब प्लेसमेंट हुई थी, लाइक वो फाइनल रिजल्ट में ना कि दिस इज वेयर यू बीन प्लेस्ड, पता चलता है आखिरी आखिरी मराहल में। और उसके बारे में जब फिर मैंने गूगल किया तो पता चला कि इट्स एन ऑल वुमेन कॉलेज जॉर्जिया में। I don't think there are many in the US, but the one that I was placed in was an all women college. Okay. और इंटरेस्टिंगली जब मैं फिर स्टेप में भी गई, तो वहां पर जो हमें स्कूल्स में प्लेस करते हैं पढ़ाने के लिए, वो भी ऑल गर्ल्स स्कूल था। ठीक है, हम सब के एक्सपीरियंस की तरफ आएंगे, लेकिन जस्ट एक दो ओके। चीजें। एक तो ये कि मुझे भी एक तरह से ये शौक था जब मैंने सुना कि आईएसएमसी, जब हम फर्स्ट क्लास में गए, तो मोस्ट रिलीजियस कंट्री इन द वर्ल्ड, सो आप कहते हो कि सऊदी अरबिया, ईरान, फलान बस्तान, but they said America, United States, and for the first time, then once we started reading, then we got to know how the churches are so influential in everything. तो खैर आउस्ताउश हम उसे कहते हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम, जो सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम है जर्मनी में, उसको आउस्ताउश कहते हैं। और हमारे पास एरास्मस के या ओके। ओपार जो यूएस से आते हैं स्टूडेंट्स एक सेमेस्टर, हम्म। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है उनको फ्री टाइम दिया जाता है ताकि वो कल्चरली असिमिलेट हो, कल्चर इंटीग्रेशन के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। तो क्या ऐसा यू ग्रेड में भी है या? एब्सोल्युटली। और यूग्रेड जो है ना प्रोग्राम ही एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है। um, तो पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर भी स्टडीज एकेडमिक्स के हवाले से तो चीजें हैं, उसके लिए तो भेजे जा रहे हैं आपको, भेजा जा रहा है आपको, बट साथ साथ कल्चरल एक्सचेंज भी होना, वो भी बहुत एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो उसके लिए भी बहुत फ्री टाइम भी एज सच मैंने ये फील किया था कि यूएस की यूनिवर्सिटीज में बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं होता, ओवरलोड नहीं करते हैं बच्चों को। और क्योंकि मैं ह्यूमैनिटीज में थी तो शायद उस तरह से भी, लेकिन मेरी रूममेट थी वो हार्ड साइंसेस फिजिक्स पढ़ रही थी, तो उनका थोड़ा टफ शेड्यूल था। लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हाँ देते हैं फ्री फ्री टाइम। फ्री टाइम नहीं कहूंगी, एकेडमिक्स में उतना ही वर्कलोड होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे कोई भी अपॉर्चुनिटी होती है ना, कहीं पे पार्टी है, कहीं पे लाइक कुछ एक्सपीरियंस करने जाना है, एक्वेरियम या उस तरह जिस तरह से भी लाइक वेस्ट में चीजें होती है ना, तो उसमें प्रेफरेंस जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को दी जाती है ताकि वो एक्सपीरियंसेस हो। और यूग्रेड के ऊपर एक कल्चरल पासपोर्ट देते हैं वो, और उसको जो है एक कंपटीशन होता है सारे जितने पाकिस्तान से गए हैं उनके बीच में, और उसका एक प्राइज भी आपको जो है वो आप विन कर सकते हो, कि वो कल्चरल पासपोर्ट को आप लाइक कौन कौन सी चीजें करके आप जो है ना उसमें एविडेंस डालना होता है कि मैंने जैसे किसी को हेल्प आउट कर दिया या कम्युनिटी सर्विस दे दी, या बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं। तो वो जो है ना साथ साथ फिर आप वो फिल करते करते भी आप बहुत सारी चीजें जो है ना वो कल्चरली एक्सपीरियंस करते हो फिर। ठीक है, मे तो बी। वो बहुत एक्साइटिंग एक पार्ट है। Perfect. Last two questions regarding, US. So one is about where do you study there, and second is about how much do they pay? Is it enough to sustain there? तो मैं तो गई थी, अब 10 साल हो गए मुझे गए हुए। सो आई आई हैड गॉन इन स्प्रिंग 2013, बल्कि 10 साल से भी ऊपर ही हो गए। 2013 में मैं गई थी, और ये बिल्कुल तीसरा बैच था, मतलब यूग्रेड अभी नया शुरू हुआ था तब।
तो मुझे प्लेस किया गया था एग्नेस स्कॉट कॉलेज है डिकेटर जॉर्जिया में। तो जॉर्जिया इज इन द साउथ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, तो वहां पर मैं प्लेस की गई थी। तो और वहां पर तब जो स्टाइपेंड मिला था इट वाज मोर देन एनफ। तो शुरू शुरू में जब जाते हैं पाकिस्तान से, तो वो वॉशिंगटन डीसी के अंदर ना 4 दिन का स्टे होता है। वहां पे मतलब सारे ही बच्चे एक ही जगह पर 4 दिन उनकी ओरिएंटेशन होती है। अम, और वहां से फिर वो अपने अपने स्टेट्स जहां पर भी वो प्लेस किए गए हैं वहां फिर वो चले जाते हैं। अम, तो मुझे जॉर्जिया प्लेस किया गया था। और जब वॉशिंगटन डीसी से फारिग हुए थे, तो मेरी यूनिवर्सिटी को स्टार्ट होने में अभी 1 हफ्ता था, तो मुझे एक फैमिली के साथ रखा गया था, यूनाइटेड लाइक यूएस की फैमिली के साथ, ताकि वो भी एक्सपीरियंस हो के वो किस तरह से रहते हैं। तो एक वो भी हिस्सा है यूग्रेड का। लेकिन वो एक्सपीरियंस भी सबको नहीं मिलता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी कब स्टार्ट हो रही है आफ्टर दैट द ओरिएंटेशन प्रोग्राम इन डीसी। तो मुझे जॉर्जिया में प्लेस किया गया था। और शुरू शुरू में आई बिलीव कोई $1,600 मिले थे फॉर बुक्स एंड लाइक वो सेटलिंग अलाउंस। और फिर हर महीने 800 मिलते थे, आई थिंक 2,000 मिलते थे। नहीं नहीं, जब शुरू में गए थे तो $2,000 हमको दिया था, और उसके बाद 1,600 मिलते थे फॉर 2 मंथ्स। Okay. Yeah, that's तो इट्स मोर देन एनफ टू सस्टेन। इवन आप ट्रेवल कर सकते हो उसमें। तो स्प्रिंग ब्रेक जब आया था, तो आई हैड गॉन टू न्यूयॉर्क। बाकी बहुत सारी जगह फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट के फंड से कवर हो गए थे। बट लाइक आप ट्रेवल भी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। ठीक है। और ये अकोमोडेशन जो है ये स्टूडेंट डोमेट्रीज हैं या प्राइवेट है या किस तरह से? तो वो मेरे ख्याल में जब आपको प्लेस करते हैं ना, तो फिर वो यूनिवर्सिटी जिस तरह से आपको रखे। तो जिस यूनिवर्सिटी में मुझे प्लेस किया था इट वाज एन ओल्ड यूनिवर्सिटी। एग्नेस स्कॉट जो है ना, वो अब्राहम लिंकन की मदर का नाम था, उसके नाम से यूनिवर्सिटी रखा गया था। सो इट वाज अ वेरी ओल्ड यूनिवर्सिटी। तो उसके कुछ ओल्ड डॉर्म्स थे और कुछ न्यू डॉर्म्स थे। तो मैं एक ओल्ड डॉर्म में थी, उसमें लिफ्ट भी नहीं था और हीटिंग भी, मतलब उस तरह से, लाइक इट वाज अ वेरी ओल्ड हम्म। building, which was nice, कि उस तरह से भी चीजें होती हैं, like you know, in a place like the United States. um, तो वो डिपेंड करता है कि आपका यूनिवर्सिटी आपको किस तरह की जगह में रखता है। ठीक है, परफेक्ट। आई गेस यू माइट नॉट हैव मोर टाइम। कितना टाइम आप दे सकती हैं? बिकॉज आई कैन ऑल्सो सी किड्स मस्ट बी वेटिंग फॉर यू। No, I'm okay. या, ओके देन परफेक्ट। I'm actually enjoying this. Yeah. Okay, perfect. Then Yeah. we will just quickly go towards steps. But before going to steps, I would request our audience to please pop in to ask your question or just write it in the chat box so we can ask the Mhm. questions toward the end. If you have any question regarding UGRAD, so you can ask it now or just, Yes. come in. And then the second announcement is like in 3 minutes, this is going to go off. So you will need to use the same link again to join because for some reason, Zoom has introduced this system of, where it goes 40 off, minutes वाला। yeah, in 40 minutes. Yeah. So Mhm. ये एक problem है. So in the meanwhile, if Okay. anyone has any questions. If not, then we will come back from the US to Pakistan. And in 1 year, you were actually teaching there. Yes. And then how come the idea came that you again need to go out for further studies? So before joining the city school, I had already applied on the STEP program. So जब वो फिर रिजल्ट आए, तो I had to leave Mhm. the city school. Okay. And Yes. Um, do you require any IELTS for the UGRAD and for STEPS as well? So if you can reflect on for your. UGrad, so after you are selected for the program, आपको TOEFL
देने को कहा जाता है, वो खुद ही दिलाते हैं बेसिकली आपको। यूएससीएफपी वाले खुद ही, लाइक दे पे फॉर इट। वो अपने ही प्रेमिसेस पे उसका टेस्ट रखते हैं, आप जब जिस जाके वो दे देते हो। सो आफ्टर यू आर शॉर्ट लिस्टेड, यू डू दैट, टोफल का टेस्ट देते हो। ठीक है। It's not exactly like IELTS, थोड़ा उसको टोफल आईडीपी कहते हैं वो। It's a much easier test. Okay. It's the testing of English language, English as a foreign Yeah, language. Okay. yes, क्योंकि यूएस के अंदर वो टोफल एक्सेप्ट करते हैं, आइल्स नहीं करते। Okay. आइल्स जो है ना, कनाडा और यूरोप के अंदर, यूके के अंदर जो है वो एक्सेप्ट होता है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने एक दो यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था जिसके अंदर यूएस के अंदर भी वो मांग रहे थे अपना आइल्स। सो मेरे ख्याल से कुछ यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्शन है कि वो आइल्स मांग रहे होते हैं। ओके, नाइस, तो ओके, एनीवेज एक्सेप्ट कर लेते हैं। yeah, it's gonna go off in less than a minute. So anytime it closes, please use the same link to join in. So ओके, someone asked Baji, please reflect on the scholarship in China. So I guess we'll come ओके, toward the Chinese part स्कॉलरशिप, यस, वी विल toward कम the end. बैक। Yeah. So please ओके, stay tuned. So toward the end, we're सी going to यू go इन अ discuss बिट। that. But the next thing we are going to discuss is IELTS requirement and everything for STEP ओके, and how the process works and who is eligible and who is not. So please, if you can just start with IELTS. for now or after it goes It's off, we going to will go come off back. any. But kudos to you, Mahmood, के ये आप काम कर रहे हो even when you are holidaying. Yeah, I mean, I'm always holidaying, so I always work when I'm on holidays. क्या बात है। But doing something like this is incredible. Like बच्चों को help करना इस तरह से, not a lot of people do it. Yeah, I mean, because the reason is also because a lot of people, come to me individually, ask so many times. So, order to Hmm. answer everyone individually, it takes a lot of time, and a lot Hmm. of energy to say Hmm. the same thing again and again and again. So what I thought was, Hmm. let's do it, in a group. Let's create a group, and whoever's interested, add them in and ask them to add other people who are interested. तो इस तरह करते करते कोई Hmm. अभी हमारे मेंबर्स मेरे ख्याल से 100+ मेंबर्स हो गए हैं। ये कोई हमने 3-4 हफ्ते That's पहले start creative. किया। Nice. So then I said, Nice. okay, why not to record it so that it's there? If someone asks right now, if someone asks Hmm. me something, I'm like, it's there. Go there, watch it online. Hmm. Maybe you'll have your answers. If not, Hmm. then come back to me, because I cannot manage time to individually do it for everyone. So this is a collective thing that Hmm. came to my mind, and that's what I'm doing it. Hmm. Very nice, very useful, very creative. Yeah, and I hope people अच्छा benefit जी, from बच्चे it. जब तक आते हैं मैं बस 1 मिनट में आती हूँ। Are you listening to me? Are you there? Yeah? Yes, yes, yes. I can't see your video. Yeah, there you go. Okay, so quickly, can you tell us about the IELTS, the process of IELTS, and where is it conducted, and who conducts it, and how much points you need to score in order to be considered for steps? अच्छा, आइल्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर देयर आर मल्टीपल एजेंसीज जो के इसको कंडक्ट करते हैं। आईडीपी है जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट उसको करता है कंट्रोल, और फिर ब्रिटिश काउंसिल है जो यूके गवर्नमेंट बैक्ड है। Hmm. तो दोनों जो है, आप दोनों प्लेटफॉर्म से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आईएल्स इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना उसको बहुत ज्यादा बताया जाता है, दिखाया जाता है ना। आईएल्स मतलब इट्स एक सिस्टमेटिक टेस्ट है। और मैंने आइल्स ट्रेनिंग भी काफी अर्सा, जब मैं इतरब के साथ काम करी थी, तो 2 साल में एज एन आइल्स ट्रेनर भी, लाइक जितने जो बच्चे हैं उनको ट्रेन करने के लिए मैं काम करी थी। तो बहुत बारीकी से जैसे मतलब उसको देखा है कि टेस्ट क्या चीज है। तो उस बजाय तो वो लैंग्वेज टेस्ट है, बट इट्स वेरी सब्जेक्टिव है जैसे टेस्ट। तो अगर आप हर टास्क की रिक्वायरमेंट को समझ के टेस्ट दोगे ना,
तो आप बहुत अच्छा बैंड स्कोर कर सकते हो। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो यूके के अंदर हैं वो 6.5 एंड अबव बैंड जो है ओवरऑल बैंड स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। कोई कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो किसी एक कंपोनेंट में अगर आपका 6 बैंड आता है तो वो भी चल जाता है, ओवरऑल 6.5 हो और किसी एक में अगर 6 है तो वो भी एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन मेजोरिटी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो ओवरऑल 7, 6.5 वो एक्सेप्ट करते हैं। तो और चारों कंपोनेंट्स में, चारों जो लैंग्वेज के कंपोनेंट्स हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग में, आपका एटलीस्ट जो है 6.5 बैंड होना चाहिए आइल्स के अंदर। और तभी जो है आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होता है। ठीक तो है। वो चीज मैटर नहीं करता है कि आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड में आपके लाइक कितना स्मूथ है, आपके ग्रेड्स सारे ए स्ट्रेट एज हैं, और अगर आप आइल्स नहीं स्कोर कर पाए तो आपका एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट होता है। ठीक है। और अगर आइल्स आप एक दफ़ा दे देते हैं और आप क्लियर कर जाते हैं, क्या वही आइल्स आप जब बाद में यूके में किसी और यूनिवर्सिटी में स्टेप करने के बाद या यूसीएल वगैरह में जब आप अपने मास्टर्स के लिए जाते हैं तो वो आप वही स्कोर यूज़ कर रहे होते हैं, या और इसकी वैलिडिटी बिल्कुल। क्या है? तो स्टेप जो प्रोग्राम है वो आईएएस स्पॉन्सर करता है। एंड आईएएस आपको अंदाजा होगा कि एक कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन है ना, मतलब इस्माइलियों के लिए काम करता है, बेसिकली इस्माइली स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिलाता है। um, लेकिन जो रिक्वायरमेंट स्टेप में आइल्स का है ना, वो जो पार्टनर यूनिवर्सिटीज हैं आईएएस के साथ, उनकी रिक्वायरमेंट है। यूएस यूसीएल और सोएस की रिक्वायरमेंट है आइल्स। तो अब जैसे होता है ना कि क्योंकि मैंने जिस तरह से आपको कहा कि बच्चों को ट्रेन करने में भी मैंने इतरब के साथ काम किया है आइल्स में, मतलब जितनी ज्यादा नीड है ना पाकिस्तान के अंदर स्टेप टीचर्स की, अगर बस चले इंस्टीट्यूशंस का तो एक थोक में वो लेके जाए बच्चों को, उनको स्टेप टीचर्स ट्रेन करके वापस भेज दे, इतनी ज्यादा नीड है। बट इतनी रिगरस प्रोग्राम के थ्रू गुजरना, बारीकी से सारी चीजें करने का मकसद यही है कि जो पार्टनर यूनिवर्सिटीज हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करके उनको बच्चे दें ट्रेन करने के लिए। So it's actually UCL और SOAS की रिक्वायरमेंट। ओके, परफेक्ट। और आप ये अपना सारा स्कोर सबमिट करके उसके बाद कोई टेस्ट भी दे देते हैं, या टेस्ट ज़रूरी नहीं है इसके लिए? अच्छा, तो मैं बात करती हूँ कि अप्लाई कैसे करते हैं स्टेप के हम्म। लिए, राइट? तो स्टेप के लिए अप्लाई करने का जो सिलसिला है वो स्टेप के एप्लीकेशन से नहीं स्टार्ट होता। तो हर साल ना मार्च में या फेब के एंड में या मार्च में जमातखनों में अनाउंसमेंट होती है और फ्लायर्स भी इनके सर्कुलेट होते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर, और उस तरह से कि जो है आप इस साल के स्टेप कोर्ट में एंटर होने के लिए उम्मीदवारी जाहिर करो, ठीक है? उसमें आप जो है इतरब के साथ रजिस्ट्रेशन बेसिकली करते हो। तो उसमें नेशनल इतरब को जो एक नंबर जाता है कि कितने लोकल इतरब जुरिस्डिक्शन से कितने बच्चे इंटरेस्टेड है इसमें, ताकि वो, क्योंकि वो बजट वगैरह सेट करते हैं कि बच्चों को कितना वो सपोर्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल गुलकिन से फैसल इस साल कहता है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, और फैसल के साथ 3 लोग और करते हैं गुलमित के लोकल से, ठीक है। फिर उसी तरह से अलियाबाद लोकल, करीमाबाद लोकल, अल्तिफ वगैरह उस तरह से वो करेंगे तो उनके पास एक नंबर जाएगा, ठीक है। तो उनको एक स्क्रीनिंग टेस्ट से गुजारते हैं और वो एक लैंग्वेज स्क्रीनिंग टेस्ट है। ये जो है ना आईएएस इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये इतरब अपनी तरफ से कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली इतरब इज गोइंग टू बी द एम्प्लॉयर इन स्टेप टीचर्स का, ठीक है। तो वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट देते हैं और स्क्रीनिंग टेस्ट में भी थ्रेशोल्ड होता है कि इतना स्कोर अगर आपका आता है तो आपको जो है आइल्स के लिए ट्रेन करेंगे। ऑफ कोर्स अगर आपका बेसिक लैंग्वेज सही है तो ही आपको पॉलिश करेंगे ना टेस्ट के लिए, टेस्ट में अपियर होने के लिए। तो वो स्क्रीनिंग टेस्ट से गुजरने के बाद अगर आप थ्रेशोल्ड मीट करते हो तो फिर आपको इन पर्सन 2 वीक्स की ट्रेनिंग मिलती है, आइल्स के लिए प्रिपेयर करते हैं आपको। उसमें आपकी अटेंडेंस अगर फुल हो ना तो इतरब आपका फी भी दे देता है, आपकी आइल्स फी भी दे देता है, पे करता है। तो वो चीज होती है स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद, ठीक है। और उसमें आपको लाइक अपने ओन पे प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारा मटेरियल भी मिल जाता है, आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है बेसिकली ये।
स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद वाला जो प्रोग्राम है। तो वंस उसमें से आप गुजरते हो, फिर आप फौरन से आपको जो है ना आइल्स के लिए रजिस्ट्रेशन तक में आपको जो है वो असिस्ट करते हैं। आइल्स के लिए आप रजिस्टर करते हो, आइल्स दे देते हो, आपका स्कोर आ जाता है, तो फिर टाइम आ गया होता है स्टेप एप्लीकेशन जब ओपन हो जाता है तब। ठीक है, स्टेप का एप्लीकेशन भी, अब मैंने जिस तरह से यूग्रेड के बारे में बात की, उनका भी अभी पोर्टल है। मेरे ज़माने में मैनुअल था, लेकिन अभी उनका भी एक इसी तरह से एप्लीकेशन, एडमिशन एप्लीकेशन पोर्टल है, तो वहीं पे आप सब जो है फिल करते हो। और उस तरह से पर्सनल स्टेटमेंट राइटिंग में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। स्टेप के अंदर स्टेप टीचर्स वो रिव्यू करते हैं आपसे, आपका पर्सनल स्टेटमेंट। मल्टीपल ड्राफ्ट्स आपके प्रूफ रीड होते हैं, और रिव्यू करके फिर आपका एक फाइनल पे पर्सनल स्टेटमेंट बनता है, फिर वो आप सबमिट करते हो। लेकिन अपने बारे में बात करूं तो मुझे नहीं पता था कि ये सब चीजें अवेलेबल हैं। मैंने अपने ओन पे किया था। आई हैड इवन कुरियर्ड माय, लाइक वो मैंने कुरियर से भेजा था अपना एप्लीकेशन फॉर्म। शॉर्टलिस्ट होने के बाद मुझे पता चला कि इतरब तो ये सब करता भी है। तो अभी ये दिस इज इन प्लेस, बच्चों के लिए है, तो वो इसको अवेल करें, इसमें से फायदा उठाएं। ठीक है। और ओवर द इयर्स आपको क्या लगता है इस प्रोग्राम के अंदर क्या चेंजेस आ गए, और क्या ये वही प्रोग्राम है जो आपने किया था कुछ साल पहले, या इसके अंदर अभी मैंने सुना कुछ डबल मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है, इस तरह कुछ इसको कन्वर्ट किया गया है स्टेप प्रोग्राम को? पहले ये डबल मास्टर्स प्रोग्राम था। मेरे कोहॉर्ट से पहले, मैं कोहॉर्ट 11 से हूँ ना, तो 10 कोहॉर्ट्स तक ये डबल मास्टर्स प्रोग्राम था। लाइक समीना बाजी ने डबल मास्टर्स प्रोग्राम में का हिस्सा वो थी। तो उनको एक एमए इन एजुकेशन मिला था, मुस्लिम सोसाइटीज एंड सिविलाइजेशंस, एक एमए इन टीचिंग मिला था। तो हमारे कोहॉर्ट 11 के बाद वालों को एक मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन मुस्लिम सोसाइटीज एंड सिविलाइजेशन, एक एमए की डिग्री मिल गई। और दूसरी जो क्रेडेंशियल वो हमें मिला है, वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है। दिस इज अ प्रोफेशनल डिप्लोमा। इट्स इक्विवेलेंट टू, लाइक, it's not a master's degree, but it's equivalent to that. ओके, But it's a postgraduate diploma. ठीक है। सो where do you stay in London? How do you go, and how much is the financial benefit, and is it enough to, again, to pay for everything? Okay. So STEP is a fully funded program. तो starting with, आप like आप अपने होम कंट्री में हो, आपकी वीजा फी भी इतना पे करता है, और आपकी टिकट्स भी वही कराते हैं। तो आप जब लंदन पहुंचते हो तो आप एक स्टेट ऑफ द आर्ट अकोमोडेशन एक बिल्डिंग में रहते हो। दिस इज ऑल्सो ओन्ड बाय द इंस्टीट्यूशन। उसका नाम है विक्टोरिया हॉल्स, और ये किंग्स क्रॉस पर वाक़ है। एंड यू हैव लिव्ड देयर, यू हैव सीन द, क्या है, एमिनिटीज, लाइक सारे जो वहाँ पर फैसिलिटीज हैं। तो मैं ये कहूंगी कि जब पूजा बाजी ऑक्सफोर्ड में पढ़ रही थी, तो मुझे उनके पास जाके रहने का मौका मिला था। तो ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाले बच्चों को भी उस तरह का अकोमोडेशन नहीं मिलता है जिस तरह से आईएस के स्कॉलरशिप पे जाने वाले बच्चों को मिलता है। एक बहुत ही एक अच्छी जगह पर सेंट्रल लंदन में, लाइक 2 मिनट की दूरी पर जो है ट्यूब स्टेशन है, और हर चीज बहुत ज्यादा करीब है। ब्रिटिश लाइब्रेरी जो है करीब में है। और ये जो जहाँ पर अकोमोडेशन वाक़ा है, उसके 2 मिनट के वॉक पर आगा खान सेंटर है। और इस तरह से बहुत सारे, काफी सारे ऐसे एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है। और उसको जो है इंटेलेक्चुअल ब्लॉक क्या कहते थे उसको, किंग्स क्रॉस वाले इस ब्लॉक को, मेमोर, यू I डोंट don't रिमेम्बर? know. बट इट समथिंग, वाज लाइक अ टेक हब, गूगल और फेसबुक वगैरह का वहां पे था। और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो अपना हाँ, ब्रिटिश लाइब्रेरी भी। ब्रिटिश लाइब्रेरी साथ में था, यूसीएल पास में है, और उस तरह से। तो एक बहुत ही एक क्या कहेंगे, एक बहुत ही अच्छी जगह में जो है अकोमोडेशन वाक़ है। और आईएस भी पास में ही
बिल्कुल IIS पास में आखान सेंटर के अंदर। um, और स्टाइपेंड जो है मेरे ज़माने में हमें मिलता था £470 पर मंथ, जो कि मोर देन इनफ होता है आपके क्या है, ग्रोसरी से लेकर पर्सनल शॉपिंग वॉपिंग और इवन ट्रैवलिंग के लिए। अभी तो उससे बढ़ा दिया गया है, अभी तो मेरे ख्याल में 520 कि 530 समथिंग मिलता है। एंड 500 एंड अबव पाउंड्स इज क्वाइट एन अमाउंट, और उसमें आप बहुत कंफर्टेबली जो है आप रह सकते हो। So I'm just making it quick because we have to get done within, the next 40 minutes. So 40 minutes, ओके। yeah, not in the next 40 minutes, but according to, the Zoom thing. या So या yeah, we will wrap it up in 10 minutes. The maximum we can do is. ओके, So श्योर। one thing is about what's the condition for the scholarship? That you have to return to your home country and serve there, or how does that work? Yes. So before you go to the UK, आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जाते हो इतर पाकिस्तान के साथ। एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट लेके जाते हो बेसिकली। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो कि once you complete the program in the UK, you will come back and you will serve with ITRA for Pakistan for at least 3 years. लेकिन उसका भी कंडीशन है कि अगर आप अच्छे ग्रेड से पास हुए तो, इफ़ यू डोंट लाइक वहां से नहीं पास हुए तो आपको इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं देगा। उल्टा हाँ, इतना आपको एम्प्लॉय नहीं करेगा फिर। लाइक यू हैव टू अर्न बोथ ऑफ द एजुकेशनल डिग्रीज टू बी एबल टू बी ए स्टेप टीचर। तो Hmm. रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास 16 साल एजुकेशन हो। पहले जो है वो 2 इयर्स बैचलर्स 2 इयर्स मास्टर्स एक्सेप्ट करते थे, क्योंकि मेरा खुद का वैसा है। लेकिन अभी नहीं करते हैं, उनको 4 इयर्स बैचलर्स डिग्री वाले लोग ही चाहिए। um, और उसके साथ जैसा मैंने कहा, वैसे क्राइटेरिया तो 7 ओवरऑल बैंड्स और एटलीस्ट 6.5 इन ईच कंपोनेंट है। लेकिन अगर ओवरऑल 6.5 और किसी एक में अगर 6 भी है तो वो आपको कंडीशनल ऑफर मिल जाता है। लेकिन आप आइल्स पे री अटेम्प्ट करके उसमें ओवरऑल 7 बैंड ला के तभी जाते हो। लेकिन प्लेस जो है आपकी सेव हो जाती है प्रोग्राम के अंदर। Mhm. So when you once you ये return है। to your home country, you have to serve for just that 3 years. That's it. यस, मतलब प्रेफरेबली तो वो चाहते हैं कि उनके साथ ज्यादा अरसा काम किया जाए, बट लाइक 3 साल के बाद यू कैन लीव। Okay. And that's what you did. लाइक यू आर अलाउड टू लीव। आई लेफ्ट आफ्टर 4 इयर्स। Okay. Perfect. And yeah, I'm interested how you ended up in China. Step was helpful in this regard as well. चाइना में ना लैंग्वेज टीचिंग के अंदर ये लोग प्रेफर करते हैं कि नेटिव टीचर्स ही मिले, नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स को ही ये ज्यादा हायर करते हैं। और बहुत ज्यादा बेनिफिट्स भी जो है ना नेटिव इंग्लिश टीचर्स को ही मिलता है। लेकिन मुझे लास्ट ईयर अराउंड दिस द सेम टाइम लाइक मार्च में सोचा था कि चाइना ट्राई करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के लिए। अब क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी था ना, तो उसलिए भी मैं करना चाह रही थी ये। और थोड़ा सा मैंने जिस तरह से कहा कि एक नई जगह और वो वाली चीज भी थी। तो वैसे ये भी अप्लाई करना भी शुरू में शुरू किया था। आई वाजंट वेरी सीरियस कि जाना ही जाना है चाइना। फिर रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया तो फिर सीरियस हो गई इसमें। तो इसमें भी क्योंकि मेरे पास बाहर की डिग्री है, तो वो हेल्पफुल रहा ऑफ कोर्स। इसमें पीजी डिप मुझे बहुत ज़्यादा काम आया, क्योंकि पीजी डिप जो है ना एक प्रोफेशनल टीचिंग सर्टिफिकेट है, एक प्रोफेशनल टीचिंग डिप्लोमा है। ठीक है। और आजकल दुनिया में कहीं पर भी जब आप टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहते हो ना, तो आपके पास कहते हैं QTS ना, क्वालिफाइड टीचर स्टेटस आपके पास होना जरूरी है, कि मतलब पर्चा हो कि ये क्वालिफाइड है पढ़ाने के लिए, वो वाली चीज। तो पीजी डिप एक PGC ही कहते हैं कि वो ज्यादा इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड सर्टिफिकेट है। लेकिन पीजी डिप एक तरह से उसका काम कर जाता है। लाइक इट्स नॉट एग्जैक्टली द सेम, बट क्योंकि पढ़ाई उस तरह से की गई है वो काम आ जाता है। तो इसमें फिर अप्लाई किया और अच्छा लाइक पॉजिटिव रिस्पांस आया, तो फिर मैंने कहा कि चलो देख लेते हैं। Mhm.
This was by accident as well. Okay. Like not exactly accident, but I had not put in a lot of effort in coming here. Mm-hmm. Since you have been there for 1 year, and I guess Faisal, you were asking the question, na ki, uh, tell us about some Chinese scholarships or how scholarships work in China. तो CSC के बारे में मेरे ख्याल में फैसल खुद भी बात कर रहा था ना, ये इनके चाइनीज गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स हैं और ये ज्यादा मुस्तनद है। लाइक देयर आर अदर स्कॉलरशिप्स जो कि कुछ ऐसे हॉक्स भी होते हैं, वो मतलब बच्चों को यहाँ ले तो आते हैं कहीं 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 पर से दे डिनाई देम अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, बट CSE जो है वो चाइनीज गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स हैं और ज्यादा जो है ये ऑथेंटिक स्कॉलरशिप्स हैं, जिसके बारे में फैसल ऑलरेडी बात कर चुका है ना कि वो उसमें अप्लाई कर रहा है ना फैसल। Now, Faisal, if you can reframe your question or अच्छा ठीक है, कहीं गया हुआ है मेरे ख्याल में। I guess. तो ये चीज है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, और अगर आप रिसर्च का बैकग्राउंड है या इंटरेस्ट है रिसर्च के अंदर, उस तरह के बच्चों को मैंने देखा है कि ये लोग प्रेफर करते हैं। मैं जितने यहाँ पे पाकिस्तानियों से मिली हूँ या कम्युनिकेट किया है, मोस्टली आर रिसर्च के बैकग्राउंड से। और देयर आर अ लॉट ऑफ लाइक थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हियर स्टडीइंग वर्किंग। तो पाकिस्तानी मतलब एक होता है ना कि हम लोग कहीं जाते हैं तो थोड़ा सा पाकिस्तान से है वो वाला मिलता है हमें, यूरोप में US में ना, तो चाइना में बहुत इज्जत है हमारी। I'm sure होगा यार, वो पैसे के लिए रहेगा फिर भाई. No, it's better here. It's better. That's good to know. I mean, good to hear. So, I guess we don't have any audience, no questions as such. So Yeah, we would wrap wrap it it up. here. And also because I'm feeling really cold right now, I just quickly want to put the fire in the Okay. fireplace. Sure. Yeah. Oh, okay, then thank you very much सीमा for coming. आपने जो है मेरे एक रिक्वेस्ट पे आपने हाँ कर दिया, जिसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अपने बच्चों को साइड पे करके वो भी सोच रहे होंगे कि आज मामा को क्या हुआ है रात के इस पहर। और हाँ, बाकी में काफ़ी रात बीत गई और आप इस रात को जो है जागे हुए हैं हमारे लिए, तो इसका लिए बहुत शुक्रिया। और आपके बच्चों को शुक्रिया। और फजलू को तो मैं शुक्रिया नहीं कहूंगा क्योंकि वो है ही नहीं घर पे, तो कहीं गया होगा क्योंकि वीकेंड है फॉर श्योर. No, he's home. Okay. Oh, he's home? That's Yeah. surprising. So, but yeah, thank you, Seema. Thank you for being here. Okay. Thank you so much Bye. for having me, Mahmood. Thank you. Yeah, Okay. have a Thank you, good Bhaji. Thank you so night. much. Okay. Stay Thank you, warm. Faisal, for Okay, being here. Faisal. Bye bye. Allah Hafiz. Allah Hafiz.